لیے زوردار تعریف کریں. اور جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی ہم خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. آج بہت ہی اہم اور خوبصورت دن ہے. بچوں میں سے کوئی بتائے گا آج کا جو دن ہے وہ اسپیشل کس اعتبار سے بڑا اہم ہے؟ شاباش. ہاں جی. یس. یس یس ادھر آئے. شاباش. وہ کیمرے میں کیا 14 اگست ہے اور آج ہمارا جو ملک کے پاکستان ہے وہ 75 سال کا ہو گیا ہے. ہیلیلویا. گویا ہمارا جو ملک ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. تھینک یو جیسس. آئیے 75 سالہ جشن کے لیے ہم اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان یاد رکھیں جو آزادی ہے کلام اس میں بہت ہی خوبصورت مداخلت کرتا ہے. آزادی تو ہے پر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بننے دو. آزادی میں ان چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو قوانین آزادی کے بعد ہم پہ لاگو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان قوانین کی حد میں رہ کر ہم پہ جو پابندیاں عائد ہیں ہم ان کو کس طرح نبھا سکتے ہیں. تو آزادی بڑی ہی خوبصورت نعمت ہے. آزادی بہت بڑا تحفہ ہے. آئیے ایک آیت خدا کے کلام میں سے پڑھ کر اس کو ہم شروع کریں گے. پالوس رسول کا خط ہے گلتیوں کی کلیسیا کے نام 5واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. صرف ایک آیت پڑھیں گے. اس کے بعد جو حوالہ ہے وہ پاسٹر طارق صاحب کے پاس ہے. اس کی طرف ہم جائیں گے جب ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی. مسز نسرین ندیم اس آیت کو پڑھنے میں ہمارا ساتھ دیں گی. دھیان سے اور غور سے سنیے. خداوند کے مقدس کلام میں سے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. ہلیلویا. اب ذرا 2 دفعہ لفظ آیا ہے مسیح نے ہمیں آزاد. ایک آزاد وہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں. ایک آزادی وہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے. ذرا غور کیجئے آگے کیا لکھا ہے. ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. اور پھر ہمیں اس نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. یہ آزادی کیسی ہے اس پہ ہم تھوڑی گفتگو کریں گے. آئیے خدا کے کلام میں سے آگے چلتے ہیں. بس قائم رہو جب تمہیں آزادی ہو, جب تمہیں دوہری آزادی ہو. ہاں جی. بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھو. جس طرح تھینک یو ویری مچ جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں میڈیسن دیتا ہے اور میڈیسن کے ساتھ وہ احتیاط بھی ہمیں بتاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا پیٹ چل گیا ہو اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہو تو فوراً ڈاکٹر کہے گا آج کے دن آپ نے کوئی سخت چیز نہیں کھانی. احتیاط بتاتا ہے, میڈیسن بھی دیتا ہے اور ساتھ میں احتیاط بھی بتاتا ہے اور ہم فوراً ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو پیٹ کا نظام ہے یا معدے کا نظام ہے وہ فوراً درست ہو جائے. اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہدایات پر پورا عمل. خدا کے کلام میں جہاں آزادی کی بات ہو رہی ہے میں ایک قوم کے پاس آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جن کو غلامی کا بڑا ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے 70 سالہ اسیری 70 سال غلامی میں گزارے ہیں. 70 سال کا مطلب سمجھتے ہیں آپ تقریباً تیسری نسل, 3 نسلوں نے غلامی دیکھی ہے. اب میں ایک شخص کے ساتھ آپ کو ملوانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالی خروج کی کتاب, اس کا باب نمبر 3 ہے.
थैंक यू जीसस। लाइट बंद होने के बावजूद हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम उसके कलाम के लिए भूख और प्यास की हालत में बैठे हैं। आमीन। आवाज तो थोड़ी ऊंची हो जाए। आमीन। थैंक यू जीसस। जी पढ़े जी। खरूज की किताब जी पहले बाब की 30 आयत। हम आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाना चाह रहे हैं, हम पहले उसके स्टेटस के बारे में बात करेंगे। जी पढ़िए जरा। तीसरा बाब पहली है। और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का कायम था भेड़ बकरियां चुराता था। अब इस शख्स का जरा स्टेटस चेक कर लें। ये मूसा, इसका काम क्या है? ये भेड़ बकरियां चराया करता था। और अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे से लेकर आऊं तो आपको मूसा के बारे में यह पता चलेगा कि ये एक मफरूर शख्स है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ये एक मफरूर शख्स है और एक कत्ल करने के बाद ये भाग कर मदीनान में आया। और बड़ी जबरदस्त बात है जो आगे हम चलकर करेंगे, ये वहां रहकर भेड़ बकरियां चराया करता था। जरा गौर कीजिए, आगे चलेंगे। और वो भेड़ बकरियों को गाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आए। और वो भेड़ बकरियों को चराता हुआ कहां लेकर आ रहा है? खुदा के पहाड़। खुदा के पहाड़ का मतलब है हुरब, जहां पे यहोवा कुदूस उतरता था। और कलाम ये फरमाता है कि जब वो पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ की कैफियत बदल जाती। जब वो पहाड़ पर उतरता तो पहाड़, कलाम में लिखा है, मेंढे की तरह उछलने लगता। जरा गौर कीजिए, जब खुदा उतरता है, जब खुदा किसी जगह पे, अब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं जिसकी ना टांगे हैं, जिसके अंदर ना दिल है, जिसके अंदर ना शरियाने हैं, ना खून है। कलाम फरमाता है वो पहाड़ है और उसके अंदर कोई ताकत नहीं, लेकिन जब खुदा उस पर उतरता है तो उसकी कैफियत देखिए। कलाम में लिखा है पहाड़ उछलने लगता है। और हम कहते हैं हम खुदा का मक़दस है। और जब हम खुदा का मक़दस हैं, और कलाम में लिखा है जब यीशु पहाड़ पर था तो उसके शागिर्द भी वहां थे, और लिखा है उसकी सूरत पहाड़ पर बदल गई। हम भी कहते हैं खुदा तेरे कोहे मक़दस में मेरे लिए जगह है, मैं तेरे कोहे मक़दस पर जाता हूं। हम भी खुदा के पहाड़ पर जाने का दावा करते हैं। क्या जब हम पहाड़ पर जाते हैं या खुदा उस पहाड़ पर आता है तो क्या हमारी कैफियत बदलती है? क्या हमारी शक्ल बदलती है? कलाम में लिखा है जब उन पर कुदस नाज़िल हुआ तो उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और कलाम में लिखा है वहां 16 कौमों के लोग, और उन्होंने इकरार किया, हालांकि हम पार्थी, मादी, एलामिया, मुस्पतामिया, कुप्तिक, पैंतुस, आसिया, फ्रोगिया, मिस्र, लबुआ, क्रीते की तरफ जो अरब हैं, कलाम में लिखा है यहूदी हैं, 16 कौमों के लोग। और लिखा है पतरस खड़ा हुआ और उसने, वो पता लोग क्या सोच रहे थे, ये ताजा मैं के नशा में है। आज इस तरह कभी कभी मुझे याद आ रहा है जब हम गोया मीटिंग किया करते थे तो बाहर लोग दरवाजा नॉक करके कहते भाई जी ताजे घर की हो गया है, तो घर वाले बताते जनाब बच्चे दुआ कर रहे हैं। अच्छा ये भी दुआ का तरीका है? हमें लगा कोई लड़ रहा है। ये यकीनन सच बात है। वाकई उस वक्त लड़ाई हो रही होती थी, उस वक्त जंग हो रही होती थी, लेकिन खून और गोश्त से नहीं, वो जंग शैतान की फौजों से हो रही होती थी। और कलाम में लिखा है जब खुदा के पहाड़ के करीब वो आया भेड़े चलाता हुआ, तो जरा पस्तरक आगे जरा गौर से। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। एक मफरूर शख्स के पास, एक भागे हुए शख्स के पास। अरब साहब मेरी बात की समझ आ रही है? एक ऐसा शख्स, क्या आप किसी कातिल पे यकीन करेंगे कि वो आपके घर का रखवाला हो? आवाज नहीं आई। क्या आप यकीन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और अकल भी यही कहती है कि हम किसी कातिल के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
हम किसी कातिल को कानून में नहीं रखेंगे कि वो हमारे घर का मुहाफिज हो, नहीं रखेंगे। लेकिन सुनिए, खुदा का तरीका टोटली फर्क है। खुदा का तरीका का टोटली फर्क है। खुदा हमारा फर्क खुदा है। खुदा हमारा अजायब का खुदा है। और लिखा है, एक मफरूर शख्स जो कत्ल करके भागा हुआ है, वो उसने कलाम में लिखा है, उसने मिस्री को रेत में दबा दिया है। ऐसा ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। वो खुदा का प्यार दुनिया के ख्यालात से ऊपर है। काश हम उसके प्यार से वाकिफ हों कि वो हमें कितना प्यार करता है, वो हम पे कितना एतमाद करता है, वो कितना भरोसा हम पे करता है। लिखा है, फरिश्ता झाड़ी में उसके पास आया। जी बेटे। उसने निगाह की, उसने निगाह की और कहा, और क्या देखता है? और क्या देखता है? एक झाड़ी में आग लगी हुई है। बच्चे मेरी तरफ तवज्जो दे जरा, ये साइंस का सवाल है। साइंस की टीचर भी हमारे साथ बैठी हुई है। वहां पे लिखा है एक झाड़ी है और झाड़ी भी, झाड़ी में आग लगी, आग लगी हुई है झाड़ी में। समझ आती है झाड़ी में आग, ये तो समझ आती है कि झाड़ी को आग लग सकती है, किसी भी माचिस की तीली से आग लग सकती है। यहां तक जबरदस्त बात है जी। अगली बात, पर वो झाड़ी भस्म नहीं है। पर वो झाड़ी भस्म। आपकी साइंस क्या कहती है इस बारे में जी? हर एक चीज को वो ऐश में बदल देती है, राख बन जाती है। ओ, जो आग है वो जब किसी जगह पे लगती है, आप कभी कभी इसी कहते नहीं, मेरे अंदर आग की लगी आ दूजे तो आग की कर दी है भला। दूजे का तो नुकसान पता नहीं होए ते ना पवे होए कि तेरा जरूर सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है आग क्या करती है? ऐश करती है। यही लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ऐश में बदल। ऐश। ऐश इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन मैं पंजाबी से कहने लगा, वो शैतान हमारे अंदर ऐश करनी शुरू कर देता है। मैं अपने अंदाज में खिंचन दिया जी। जब आग आदल साहब किसी जगह पे लगती है तो कलाम में लिखा है उसका जो स्टफ है वो चेंज कर देती है, उसकी शक्ल चेंज कर देती है। ये दुनिया की आग की बात कर रही है मिस्सी। जो दुनिया की आग है वो राख बना देती है, वो शक्ल बदल देती है। लेकिन जो खुदा की आग है, वो तेरी शक्ल को कायम रखती है, वो तेरी शक्ल को खूबसूरत बना देती है, वो तेरी शक्ल को वाज़ेह कर देती है, वो तेरे गुनाह तुझ पर ज़ाहिर कर देती है। और यहां पे लिखा है खुदा की आग की ब्यूटी देखें। जो मेडिकल साइंस वाली आग है ना, वो आपको ऐश करती है, आपको भस्म करती है। लेकिन यहां पे लिखा है फरिश्ते, बेटे पीछे कुछ खास कोई चीज है। आपको पता होता है मैं लाइव जा रहा हूं और मेरे लिए ये मुश्किल होता है कि मैं आपको दबके मारूं। मैंने अब ये आदत छोड़ दी है, लेकिन प्लीज मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप चर्च के अंदर बैठे बैठे आपस में कोई गुफ्तगू करें। बाद में मौका मिलेगा आपको। तो जो दुनिया की आग है वो आपको भस्म करती है। आज उसी के ने मेरे अंदर आग लगी, बुझेगी नहीं ये तेरी आग तुझे जला देगी। और कलाम में लिखा है खुदा की आग को उसने देखा झाड़ी में लगी हुई है, झाड़ी जल रही है आग के साथ। हालेलुया। लेकिन कलाम कहता है वो भस्म नहीं हो रही। ये है तेरे खुदा के आग की ब्यूटी, खूबसूरती, कि वो आग लगाता भी है पर जलाता नहीं है, भस्म नहीं करता। तेरी आग भस्म करती है, लेकिन खुदा की आग तुझे महफूज करती है। जरा गौर कीजिए, झाड़ी में लगी तो मूसा हैरान हो गया है, पेड़ा छड़ के ते झाड़ी ਨੂੰ ਵੇਖਣ दिया है। अशफाक साहब इमेजिन करें जरा, आपकी आंखों के सामने ऐसा मंजर हो, आप क्या करेंगे? आप भेड़ बकरियों की फिक्र करेंगे? आप तो उस मंजर को देखना चाहेंगे जो अजीब तौर से वहां रूनुमा हुआ है। और फरिश्ता, कलाम में लिखा है, एक पादरी साहब बयान करते हुए कहते हैं झाड़ी में आग जल रही थी, है? पर वो भस्म आग बल नहीं रही, आग जल रही है। हो, और देखिए झाड़ी की कैफियत क्या है।
وہ بس نہیں ہوتی. موسیٰ دیکھ رہا ہے ایک مفروض شخص, گھر سے بھاگا ہوا شخص, قاتل شخص. ہم فریڈم کی بات کر رہے ہیں, ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں, ہم آزادی کی طرف آ رہے ہیں. کیا پڑھا ویسی آپ نے حوالہ کون سا پڑھا ہے جی جی ہاں جی. مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے. میں آزادی کی طرف آ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ آزادی کو جانیں, میں آپ کو غلامی والی کلیسیا سے, غلامی میں رہی ہوئی اس بھیڑ سے ملوانا چاہتا ہوں جو کلام میں جس کا ثبوت موجود ہے. اور سنیے, آزادی کے لیے کئی دفعہ ہم تو سوچتے ہیں نا اے بندہ آزاد کرا سکتا ہے, پر شاید وہ نہیں کروا سکتا. بتھیرے ترلے منتے واسطے کیے ہوں گے انہوں نے, پر میں آج یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں. پلیز ذرا آگے چلیے اور پڑھیے. خدا نے ایک مفرور کا چناؤ کیا. اب موسیٰ نے کہا, تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں. میں ادھر ذرا کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں. لوگ لگا کے ہاں جی. یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی؟ کیوں یہ جاڑی جل نہیں جاتی؟ ہاں, جب خداوند نے دیکھا وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے, کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آتا ہے, تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا. ہاں, اس سے پہلے کہ وہ کترا کر کہیں اور گم ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ کترا کر کہیں اور چلا جائے, کلام فرماتا ہے خدا کی آواز بھی اس جھاڑی کے اندر موجود ہے. ذرا غور کیجئے, یہ سائلنس جھاڑی نہیں ہے, یہ خاموش جھاڑی نہیں ہے, یہ زبان والی جھاڑی ہے. اس میں خدا ہے. تو جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹ سکتا ہے. جو خدا جہاں نہیں بکھیرتا لیکن وہاں سے جمع کر لیتا ہے. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. بڑی دعاواں کرائیں, بڑی ادھروں بھی دعاواں ادھروں بھی دعاواں کران دیا. چٹے آ گئے پر پتہ نہیں میں ہی نکھپڑی رہ گئی, میری نہیں سنی جاندی. یعنی ایسی باتیں تو خدا کی جھاڑی سے کترا مرضی, لیکن تجھے خدا چونکہ پیار کرتا ہے وہ باآواز بلند تجھے پکارتا ہے. کہتا موسیٰ کدھر بھائی, کدھر کو جا رہا ہے؟ اے موسیٰ, اے موسیٰ, اے موسیٰ, اے موسیٰ. اس نے کہا میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. حیران ہو گیا. ایک تو پہلے حیران سی, جڑی میں آگ لگی ہوئی ہے, جڑی بسم میں ہوتی. اب اور ایک عجیب بات, اس میں ٹیپ لگ گئی ہے اور آواز کیا آئی؟ اے موسیٰ, لکھا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. ہلیلویا. خدا میرا نام جانتا ہے. کتنے ندیم ہو دنیا میں, لیکن مجھے یہ پتا ہے وہ میرا پورا نام جانتا ہے. ندیم ارجن, فرام مائدی چگی, گلی نمبر 12, مکان نمبر 998, فلانا. اس کو پورا ایڈریس اس کو پتا ہے. کیا آپ سمجھتے کہ خدا کو آپ کے ایڈریس کا نہیں پتا؟ ہم خدا کو کہتے ہیں آ جا آ جا. خدا بھول گئے اپنی پوزیشن چیک کر. موسیٰ کہتا خدا میں حاضر, میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. بڑی زبردست باتیں ہیں. تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ, ادھر پاس مت آ, اپنے پاؤں سے جوتا اتار, کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا, میں تیرے باپ کا خدا, یعنی ابراہم کا. اب اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے. میں تیرے باپ کا خدا, ابراہم کا خدا, ابراہم کا خدا, اور اسحاق کا خدا, اور اسحاق کا خدا, اور یعقوب کا خدا, اور یعقوب کا خدا. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا, موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. کیوں ڈرتا تھا؟ وہ پتہ کیا سمجھ رہا تھا کہ شاید آج خدا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہو. میں تو مدیان میں بھاگ کے آیا تھا بادشاہ فرعون سے بچنے کے لیے, اس کی فوجوں سے, قوانین سے بچنے کے لیے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اب خدا سے میں نہیں بچ سکتا. ڈر کی حالت میں ایک مفرور شخص, ایک بھاگا ہوا شخص, ایک دوڑا ہوا شخص, کلام فرماتا ہے خدا اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ اندروں ہی لیا ہوا پورا. کہتا ہے آج نہیں رہنی, آج نہیں بچنا. لیکن سنیے خدا اس کو کس لیے پیار کرتا ہے. ذرا پڑھیے. اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف, میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی. اب خدا نے
उसको दोहराया कि तू कत्ल करके भागा है? नहीं जी। मुझे बताएं जरा, उसका जुर्म डिस्कस किया? ओ खुदा उसकी अगली चीज को देख रहा है। खुदा मूसा में लीडर देख रहा है, खुदा मूसा में अपनी कौम की आजादी देख रहा है। कहता है मूसा, मैंने अपने लोगों का कहना सुना था। गौर से जरा पढ़िए, इसको दोबारा रिपीट कीजिए। खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब जो मेरे लोगों की तकलीफ मिस्र में है, गुलामी में है, मैंने देखी है। और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है, जो बेगार लेने वालों के सबब से वो तकलीफ मैंने सुनी है। और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। मैं उनके दुखों को जानता और हूँ। मैं उतरा हूँ मैं उतरा हूँ, कि उनको मिस्रियों के हाथ से मैं उनको उतरा हूँ कि मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, और उनको एक अच्छे और एक वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों यानी कनानियों और हित्तियों और हित्तियों और अमूरियों और अमूरियों और फिरसियों और फ्रीजियों रूबियों और यबूसियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा हूँ। हाँ जी। और देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। मैंने यहाँ पे ठहर जाएगा। जब मैं ये पढ़ रहा था कि खुदा कितना प्यार करता है, गुलामी की हालत में, गुलामी की हालत में आप किसी बेहतर लीडर का चुनाव शायद कर रहे हैं, शायद आप टीवी चैनल वाले को ढूंढ रहे हैं, शायद आप मौजूदात वाले को ढूंढ रहे हैं, शायद आप उसको ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए नबूवत करे, शायद आप बारिश बंद करने वाले नबी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन काश आप अपने खुदा पे भरोसा करें। लिखा है, खुदा कहता है मूसा, मैंने अपने लोगों की फरियाद सुनी और दुखों को देखा है। मैं उतरा हूं कि तुझे लीडर मुकर्रर करूं। अब मुझे बताएं, खुदा के लिए कोई मुश्किल है वो गुलामी के घर से निकालना? पतरस ने जब तलवार मार के वाक़ई गतसमनी में कान उड़ाया था, आपको याद है यीशु ने पतरस को एक बहुत ही जबरदस्त अवेयरनेस दी थी। क्या? तलवार को म्यान में रख, मैं हलाक करने नहीं बल्कि बचाने। मैं लोगों की जान हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया हूं। और अगर जंग ही करनी होती मुझे, और अगर कत्लो गारत ही करनी होती मुझे, तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं आसमान की तरफ देखूं तो 12 तुम फरिश्ते इसी वक्त इस, और आपको पता है एक फरिश्ते की कैपेसिटी क्या है मारने की? जरा बताएं। 1,85,000 पढ़े याद 1,85,000 एक फरिश्ते की कैपेसिटी है बेटे। एक फरिश्ता एंज करके करे ना, एंज करके, तो 1,85,000 अकील राणा साहब गिर जाएगा। और 12 तुम फरिश्तों की बात यीशु कर रहा है। ताड़ी उन्हीं दुनिया नहीं जिन्हें खुदा ने फरिश्ते ने, लेकिन जरा गौर कीजिए, वो फरिश्ते मेरी और आपकी खिदमत के लिए हैं। हालेलुया। खुदा ने इंसान के लिए फरिश्तों को बनाया ताकि वो फरिश्ते मेरी और आपकी खिदमत करें, लेकिन असी कहने साडा फरिश्तियां नाल की काम नहीं। मेरे अजीज भाई और बहन, बड़ी जबरदस्त बात है, तुझे खुदा जिम्मेदारी देना चाहता है। शायद तू मफरूर है, शायद तू भागा हुआ है, शायद तू शक की हालत में है। लिखा सब ने सिजदा किया मगर बाज ने शक किया। पर यीशु ने उन शकियों को भी कहा, जाओ सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। शकियों के लिए भी पैगाम वही है, कातलों के लिए भी पैगाम वही है, ठगों के लिए भी पैगाम वही है, लेकिन ये इसलिए है ताकि ठग ठग ना रहे और कातिल कातिल। मूसा, मैं तुझे लीडर मुकर्रर करना चाहता हूँ। किसके लिए? अपनी कौम की आजादी के लिए, तेरी कौम की आजादी के लिए, जैसा भी आप कहना चाहें। अशफाक साहब, आप एतमाद करेंगे मफरूर आदमी पर? हैं? आप किसी कातिल को अपने घर का गनमैन बनाएंगे जी? आप में से कोई नहीं। आप सर किसी मफरूर को जिम्मेदारी सौंपेंगे? कभी नहीं। लेकिन देखिए खुदा, हालेलुया, खुदा जानता है मूसा के अंदर वो लीडर छुपा हुआ है जो दूसरों को नजर नहीं आता। आप शायद भूल रहे हैं,
आप में से कई खुदा की खिदमत करने वाले हैं, कई खुदा के लीडर हैं, कई खुदा के घर में खिदमत के लिए मामूर किए गए हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई आप पर हाथ रखे तो आपकी मखसूसियत होगी। हाँ, ज़रूर ये भी एक कायदा और कानून है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े। बरगज़ीदा हों ताकि खुदा पर एतमाद करें। आप कौन सी पोजीशन में हैं, इसको छोड़ दें। आप दुख की हालत में हैं, पीछे कर दें इसको। आप पापों की हालत में हैं, इसको पीछे कर दें। अगर ये मगदलीनी सोचती तो कभी यीशु के पाँव को आंसू से ना भुगोती और कभी अपने बालों से भरे मजमा में उसको ना पहुँचती। वो अगर ये सोचती तो कभी यीशु को ज्वाइन ना करती। आप शायद ये बोल रहे हैं, शैतान आपके कान में आकर सैटरडे की रात कहता है वो तेरा गिरजे जानदा की काम, तू की गिरजे जान जाना, तेरा तो कोई काम नहीं है, तेरे तो फलाने गुनाह देख लिस्ट में, ये भी तेरा गुनाह। मैं कहता हूँ हाँ, हलाता हूँ सिर, ये भी तूने किया, ये भी तूने किया, तू शराब की हालत में है। मैं ये जानता हूँ आप किसी भी हालत में हैं। मैं आज से 14-15 साल पहले की आपको गवाही देता हूँ। क्रिश्चियन टाउन के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया, पास्टर तारा को पता है, वो उन दिनों में हमने प्रोग्राम किया जिन दिनों में ईद थी। और आप जानते हैं ईद का जो दिन होता है, ये पीछे कील साहब बैठे ये समझ रहे हैं कि वो कितना अहम होता है क्रिश्चियन टाउन वालों के लिए जी। उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्लानिंग के साथ वहाँ पे कन्वेंशन रखी। और आप जानते हैं क्या हुआ? कन्वेंशन के दूसरे दिन एक शख्स आया, उसने इतनी बड़ी पेटी निकाली घर में से। जब मैं खुदा का कलाम पेश कर रहा था इस बात पे कि तू खुदा का मकदस है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जो कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। वो शख्स इबादत में नहीं था, वो शख्स अपनी छत पर बैठकर किसी कस्टमर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके कान माइक की तरफ थे। वो शख्स बताने लगा कि जब मैंने मेरे कानों में ये बात पड़ी कि मैं खुदा का मकदस हूँ, मेरे बदन की जो मेरी हालत वो आपस से बाहर हो गई। और जब आपने ये कहा कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मेरा बदन कांपने लगा कि मैं खुदा का मकदस और उसका रूह मुझ में है और मैं कर क्या रहा हूँ। और एट द एंड आप जानते उसने क्या किया? वो जो घर में पेटी पड़ी थी शराब की, वो बाहर रोड पे लाके तोड़ दी ईद वाले दिन। उसने कहा आज के बाद मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिंदा। आप कौन हैं? आपकी पोजीशन क्या है? शैतान आपको मिसलीड कर रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है, लेकिन आप उसको तमाचा मारिए और कहिए मेरा खुदा हर हालत में मुझसे कलाम करता है। आप देखिए मफरूर शख्स पे, एक भागे हुए शख्स पे खुदा एतमाद कर रहा है और उसको एक दो कौमों का नहीं, एक दो नस्लों का नहीं, कलाम फरमाता है उम्मतों का लीडर मुकर्रर कर रहा है। काश हम कलाम को जान जाएं। आपने जो आज़ादी के लिए हवाला पढ़ा है वो जरा दोबारा बता दें। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जितो, ना जाए। ये ना कभी कहें, खासकर जो ईमानदार है ये सुन लें, ये कभी ना कहें मैं पहले चंगा सा, पहले तो चंगा होता था, कभी निजात ना पाना, पहले भी तो चंगा नहीं था, लेकिन आज तो चंगा हो गया है। कब? जब तेरे यीशु का खून सलीब से बहा और तेरी आज़ादी का। डाकू कहता है अगर तू लीडर है, अगर तू बचाने वाला है तो फिर हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा। दूसरा डाकू कहता है शट अप, खामोश हो जा, ओए होते जब कर जा, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। पता होता है बंदे को, बंदा जो है दुख उठाता है ना, उन्हें पता होता है कि की वजह पड़ी होता है, पता है। लेकिन आदमी का ज़मीर उसका चिराग है, रोशनी से पता लग जाता है, गुनाह ना समझ वाले हो जाता है, ज़मीर बताता है कि तू गलत कर रहा है। कहता है हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने इसका साथ सफर किया है इसने कोई गुनाह नहीं किया। ए नहताइए, ये बेगुनाह है। पर सुनिए, वो गुनाहगार ना था, वो पापी ना था, वो सजा लायक ना था,
लेकिन तेरी और मेरी बदकिरदारियां, कलाम में लिखा है उसने हमारी बदकिरदारियां अपने ऊपर उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। तेरी और मेरी बदकारियां उस पे थी, तेरे और मेरे पाप उस पे थे। वजह क्या कि तू और मैं गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, पर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। चोर का काम है गुलाम बनाना, लेकिन तेरे और मेरे खुदा का काम है आजाद करना। पादरी साहब, मैं जादूगर को जाना तो नहीं सी, पर मेरी सस ने मैनू इन्ना की तंग कर दिता कि मैनू जाना पिया। फिर तुहानू पता सस दी भी तो रखनी रख, सास की रख, चाचे की रख, बाबे की रख, लेकिन इससे भी बड़ा खुदा है उसकी जरूर रख। आमीन। उससे पहले का कलाम है कि बाद का? पहले का। तेरे दादे परदादे तो पहले का नहीं कलाम, यही गल नहीं सुनता, इसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं है। मैं भी अपने दादे की एक तलवार संभाल के रखी, हालांकि उसका काम कोई नहीं है। को तलवार का काम साढ़े हैं, लेकिन हमने संभाली हुई निशानी के तौर पर रखें, ननियाल की ददियाल की चीजें संभाल के रखें। लेकिन अपने दादकों नानकों के बड़ों से बड़ों के खुदा का कलाम भी याद रखें। ये तेरे लिए है। खुदा मफरूर शख्स को बुलाता है, कहता है तू आज के बाद लीडर है। मैंने सुना है मसीह ने आजाद किया, आजाद रहने के लिए क्यों एहतियात किया बताइए आप? कायम रहो, ताकि दोबारा कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ऐसी हरकतें ना करें। आप में से कितने हैं जिन्होंने घर में कोई जानवर रखा हुआ है, कुत्ता या बिल्ली या कोई बकरी बड़े अच्छे जानवर रखे हुए हैं, वो एज बिजनेस। अगर कोई आपको हद से ज्यादा तंग करेगा, दिल की बात बताएं, आप क्या करते हैं? ओ आलो सदा जहां उसको बेच देते हैं, तंग करते हैं। और मुझे जहां तक याद है, आपके पास इधर खड़े हुए, आपके पास एक बकरी है, वो काफी सालों से आपके पास है, वो आपने क्यों रखी है? बूढ़ी भी हो गई, वो तंग भी नहीं करती, अच्छी भी है। फायदा क्या है? हर साल 2-3 जा वो इनको देती है और 5 किलो दूध देती है। चंडालन भी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, चुगलियां भी नहीं करती, इसीलिए रखी हुई है ना। बेटा बूढ़ी भी हो गई है, उठा के उधर, पर चूंकि उसकी आदतें अच्छी हैं वो इनको पसंद है। ये मैं भेड़ की बकरी की बात कर रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छी हैं, वेरी नाइस, तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बकरी की बात कर रहा हूँ कि बकरी आपने इसलिए संभाली है, दूध देती है 5 किलो, तंग नहीं करती, चुगलियां नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, पड़ोसियों के घर नहीं तुरती, और बूढ़ी होने के बावजूद वो हमें कबूल है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी साबित हो। तो क्या जब हम खुदा के लिए और उसके काम के लिए अच्छे साबित होंगे, खुदा हमारा पीछा छोड़ेगा? लिखा है रूह को ना बुझाओ रूह को, तो ना हकारत करो अगर तुम उसकी। और लिखा है जो मेरे खादम को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। दाऊद को तजर्बा है, सामने दुश्मन है, तलवार मारे और उसको कत्ल कर दे, याद आया ये खुदा का मंसूर है, नहीं निकल गया। शाऊल से कहता है मैं चाहता तो तेरे नेज़े के साथ तुझे दीवार में फिरो देता। नौकर ने हला के किया है, उन्होंने कहा उस्ताद जी आज मौका मिले है, करो दिए, इन्हें बड़ा ही तंग किया है। उस्ताद कहते नहीं, इस पे खुदा का ठहरता होता था कभी, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ना करे नाज़िबा गुफ्तगू, ना करे इस तरह की बातें। उस आग को बुझाने की कोशिश करो जी तारे अंदर ले लगी, और उस आग को ले जाने की कोशिश करें जो जारी में लगी हुई है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक बार नारा पास तक लगाओ जरा, बोलो खुदा में यीशु के नाम की हालेलुया।
खुदावंद यीशु ने तुम्हें आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए, पर क्या करना है? कायम रहना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जीतना। फिर नहीं कहना मैं पहले ठीक सा ते हूँ मैं रूहानी हो के बहुत स्टेप गया। कभी ये नहीं कहना। याद रखें, खुदा प्यार करने वाला खुदा है, खुदा एतमाद करने वाला खुदा है, खुदा को तुझ पे भरोसा है। अगर खुदा मफरूर शख्स पे यकीन करता है तो आप अगर सोफे में बैठ के खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आप सफ़र में कलाम सुन रहे हैं, आप कहीं भी किसी जगह पे हैं, मैं आज आपको भी कहूँगा खुदा आप पे भरोसा करता है। आप ड्रिंकर हैं, आप सूटा पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप खुदावंद को मौका दें कि वो आपका दिल तब्दील करे। आज खुदा का कलाम तेरे और मेरे लिए इस 14 अगस्त के मौका पर यही है कि खुदावंद यीशु ने तुम्हें और मुझे आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए, दोबारा गुलामी के जुए में। आइए खुदा के कलाम के लिए ताली बजाकर